So, dear students, welcome to the class today. And the previous topic that we have done, we have been talking about electoral politics. Lot of political situations that exist in India. A lot of politics that happens in India. It has its base since the making of Constitution. Constitution was made, India was declared as a democracy. Since then, elections are happening. And I'm just giving you a brief idea that how did the elections start. Please understand. क्योंकि today the elections that are happening, जितना भी कुछ हो रहा है, whatever election process is happening, it started from 1950 constitution बनने के बाद, and it was decided that all the political parties that are there in India, जितनी भी हैं, everybody can contest in the elections. Got it? And the election results that are there, it is the result not of elections, it is the result of the faith of Indians. 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये विश्वास का नतीजा होता है. People go for voting. सारे नहीं जाते, everybody doesn't go. But then the voting that happens, it decides the future of the Indians and the future of the Indian leaders. Got it? लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, till now we have discussed. Every time I talk and every time I mention about the electoral politics, I think and I get reminded about चौधरी देवीलाल. 76-year-old man. बार बार मैं ये बात कहती हूँ, आपको भी लगता होगा मैम तो बिल्कुल पका रही हैं. ओके, just in a general term it came to my mind, but then children, very inspirational figure, very inspirational. I mean, getting the participating in the elections with so much of enthusiasm at the age of 76, hats off. Okay, now let's start this new topic. What makes an election democratic? How does the elections become democratic? Elections are happening in many ways. बहुत सारी countries में, many countries are holding elections. लेकिन the way it is done in India ना, इस तरह का election process is hardly found anywhere. जितने अच्छे से हम election conduct करवाते हैं, उतने अच्छे से शायद किसी country में नहीं होता हो. Got it? All democratic countries, all the countries which are talking about democracy are getting the elections done. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी होता है elections. ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिमेंबर? elections that were happening in many countries, याद होगा आपको. हमने चाइना के बारे में पढ़ा था एंड पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था. तो मेनी कंट्रीज है, जिम्बाब्वे नहीं, द साउथ अफ्रीकन कंट्री. तो ऑल दीज कंट्रीज वेयर द इलेक्शंस आर हैपनिंग, दीज इलेक्शन, तो बहुत सारी कंट्रीज का वी हैव डिस्कस्ड मेनी एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे इलेक्शंस आर हेल्ड. लेकिन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक्सप्लेनेशन इज टोटली डिफरेंट. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट डज डेमोक्रेटिक इलेक्शन मीन. टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, तो एक्चुअली व्हाट डज वी वांट टू से. तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. दैट we learn there and start with a simple list of, सबसे छोटी सी एक लिस्ट बनाते हैं with minimum conditions of a democratic election. इलेक्शन होल्ड करने के लिए सबसे पहले certain conditions needs to be fulfilled. ओके, वो क्या क्या कंडीशंस हैं कि मिनिमम कंडीशंस. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इफ वी आर सेइंग, if any country is
saying कि no, हम तो बहुत अच्छे से elections कराते हैं, our country the elections are happening in a very democratic manner. तो ये features हैं, these are the features of democratic elections कि क्या ये policies और क्या ये चीज़ें आप follow कर रहे हैं. Which is saying that it is following the method of elections in a proper manner. तो पहला तो ये है कि everyone choose, सबको right मिलना चाहिए voting का. Everyone should have one vote and every vote should have equal value. एक वोट मिलना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. पहला तो ये हो गया. Another thing is that कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. किस में से चुनेंगे? फ्रॉम वेयर आर वी चूजिंग? ओके, समथिंग टू चूज फ्रॉम. एंड पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, इनको कोई भी, nobody should say कि हो you are from this party, you cannot contest the elections. एज देखो, criterias are there for contesting the elections, but then everybody is free to become a candidate and everybody is free to choose a leader. Okay, तो ये देखो यहाँ पे very clearly it is mentioned that the parties and candidates should be free to contest elections. अपने तरीके से ये elections में participate कर सकते हैं and they should offer some real choice to the voters. वोटर्स को चुनाव का एक तरीका मिलना चाहिए. कितना चुनेंगे, किसको चुनेंगे, whom should be elected, what should be, how the voting should be happening. Okay, अभी रियल चॉइस वो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाओ, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, इतने सारे कैंडिडेट हैं, आप किसको वोट करोगे? दैट इज कॉल्ड अ रियल चॉइस. ओके, तीसरा क्या है कि चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. ये नहीं कि एक बारी इलेक्शन हो गया, अभी 50 साल तक इलेक्शन नहीं होगा. वंस द इलेक्शन हैड हैपेंड, but then for coming 50 years there won't be any election. So that is not democratic election. Elections have to happen at regular intervals. थोड़ी थोड़ी दिनों पे इलेक्शन होने चाहिए. And how many how regularly do the elections happen in India? Every 5 years. Got it? Regular intervals are there. Elections are held regularly after every few years. Okay, इसके बाद क्या है? थर्ड देखो, पॉइंट वाइज इट इज गिवन. सो व्हेन इट इज आस्क्ड, व्हेन द क्वेश्चन वुड बी पुट अप, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बाद में आप कहते हो मैम ने तो बताया नहीं था. दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, देन यू हैव टू गिव दिस इन पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ये रहा, एवरीबडी इज एबल टू चूज. You have to underline this. Everybody should be able to choose. पहला point. Second point is there should be to choose. How many candidates are there? और उसमें से कितने candidates को choose करना है, चुनना है कितने candidates को. Got it? This is the another criteria. Parties are there, candidates are there. They should be free to contest elections. कोई किसी को रोक टोक ना लगाए. इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो अपने हिसाब से करना है. एंड दे शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. गॉट इट? थर्ड, रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कुछ कुछ दिनों पे इलेक्शंस होते रहने चाहिए. फोर्थ, दैट द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, or whosoever has got the maximum vote should be elected as leader. Don't you feel so? Yes, children, it's very important. Got it? So the candidate who is preferred by the people, he should get elected. That is one of the very important aspects of voting. Fifth point is that elections should be conducted in a free and fair manner. We had a discussion about free and fair in our सेशन में, हमने शायद डिस्कस किया था. तो पीपल कैन चूज एज दे विश.
जिसको भी अपना लीडर बनाना चाहते हैं, whomsoever they want their leader as, they can elect that person. Okay, free and fair. तो दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस. बहुत आराम आराम से आपको लग रहा होगा अरे ये क्या चीज़ें हैं, ये तो डेमोक्रेसी में और एवरीबडी कैन प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट अ टफ थिंग, वेरी सिंपल थिंग. लेकिन देयर आर कंट्रीज वेयर दिस काइंड ऑफ इलेक्शन इज नॉट हैपनिंग. यस डियर चिल्ड्रन, इस तरह का इलेक्शंस जो है वो नहीं होता है. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे अभी ये वी विल अंडरस्टैंड द कंडीशंस दैट आर नीडेड फॉर होल्डिंग इलेक्शंस. ओके, सो वी हैव टू सी इन आवर ओन कंट्री, इफ वी सी वी कैन कॉल दीज एज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें कि हम अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि क्या इस तरह की कंडीशंस में आर वी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन. कभी कभी हमारे यहाँ भी बहुत गलतियाँ होती हैं. समटाइम्स मिस्टेक्स डू हैपन इन आवर ओन कंट्री ऑल्सो. वी टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन कुछ जगह पे सम प्लेसेस द इलेक्शंस हैड हैपेंड विच वेयर नॉट दैट डेमोक्रेटिक द वे इट शुड बी. गॉट इट? तो अभी देखो, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. देखो, दिस इज अ गुड पॉइंट दैट वी कैन डिबेट ऑन. इफ वी नीड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, लोगों के बीच में वी कैन गेट दी कंपटीशन डन, लेकिन इन दिस कंपटीशन फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इसको अच्छे से समझना पड़ेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, तो कंपटीशन इन व्हाट सेंस, किस तरह के कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं. तो elections is all about political competition, and competition is happening, it is taking various forms. बहुत तरीके के competition हो रहे हैं, and most known form of competition is that political parties, among the political parties, of course political competition is there, so political parties are involved in this kind of competition. Okay, obvious form, obvious मतलब ऐसा होता ही है. And it happens at the constituency level. Constituency, again, we had a discussion on the online session. In the online session, we had a discussion about constituency as well. Got it? So, it is taking the form of competition among several candidates. Many people are there. They are competing with each other. And अगर competition is not there, competition ही नहीं होगा, तो election का नहीं है. 2-3 people are there, बस उन्हीं में कभी किसी को वोट कर दिया, कभी किसी को वोट कर दिया. What is the fun of election then? Until and unless we have a choice, 100 candidates, 100 candidates are there, good choice, and then we choose among them. उसमें से हम एक पर्सन को चूज करते हैं. Got it? तो please understand that political competition is important. लेकिन sometimes what happens, पता है हम ये बात क्यों कर रहे हैं? Try to understand that. In the wake of competition, competition जब लोग अपना फायदा करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर देते हैं. Got it? One party is so much doing its own work, carrying on with its own work, कि कभी कभी दूसरी पार्टी का नुकसान हो जाता है. And political competition is good. Because what happens in an electoral way, in an electoral method, it has some demerits also. ठीक है, एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से बुरा भी है. Got it? एक disunity, feeling of disunity, नहीं, we are not united, and factionalism is there in every locality. Abhi please try to understand what is factionalism. Factionalism means dividing the people on the basis of certain points. फूट डालो, राज करो. Divide and rule. Yes, that is the process that is followed by some parties. And this
पॉलिसी दिस वे इज कॉल्ड एज फैक्शनलिज्म. लोगों के बीच में तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को अलग अलग कर देते हैं. पीपल आर डिवाइडेड. गॉट इट? सो फैक्शनलिज्म इज देयर इन एवरी लोकेलिटी. हर एक लोकेलिटी में वी विल फाइंड डिफरेंसेस. वी विल फाइंड पीपल डिवाइडेड ऑन डिफरेंट लाइन्स. जैसे इसी को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज पार्टी पॉलिटिक्स. डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स आर देयर. दूसरे पे दे पुट एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. अरे उन्होंने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या पता है, एक चांस आपने उनको दिया है, एक चांस हमको दे के देखिए. ओके, सो पार्टी एंड कैंडिडेट्स, ऑल दीज पार्टीज एंड ऑल द कैंडिडेट्स, दे यूज डर्टी ट्रिक्स. गॉट इट? बहुत गंदगी वाला इनका माहौल रहता है. दे वॉन्ट टू विन द इलेक्शंस. ओके, एंड वही बात है कि अरे हमारे धर्म के हो, धर्म के नाम पे वोट करो, हमारे कास्ट के हो, कास्ट के नाम पे वोट करो. दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन फैक्शनलिज्म. लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं. पार्टी शुड डू दैट? नो, नो पार्टी शुड डू दैट. गॉट इट? सो they use these dirty tricks to win the elections, and pressure is there to win. अभी काफ़ी क्या होता है कि there is lot of pressure to on the parties, and they win the electoral fights. मतलब elections के through जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो long term policies बनाने के लिए it is not good. What happens is ना, when you plan something, when a party is at the ruling stage, suppose अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट इज देयर, दे आर प्लानिंग समथिंग, प्लान कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इन दिस प्लानिंग इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 years. गॉट इट? कंप्लीट पूरे कंट्री में हमको मेट्रो लगा देना है. एवरी बिग स्टेट, एवरी बिग सिटी शुड हैव मेट्रो. 1-2 साल का काम नहीं है, 4-5 साल में भी नहीं हो पाएगा. कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा. अब दूसरी पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी कहेगी मेट्रो की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी इतनी बसेस चल रही हैं, इतनी टैक्सीज चल रही हैं, लोग अब किसी भी कोई दे कैन यूज़ एनी मोड. बंद कर दो ये प्रोजेक्ट. मेट्रो का प्रोजेक्ट बंद हो गया. आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल, कम ऑन, कि व्हेन दैट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आर अनेबल टू बी फुलफिल्ड, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, तो some good people are there who may wish to serve the country, who want to do something for the country, do not enter this arena. वो फिर कहते हैं कि भैया ऐसा है, दूरी से प्रणाम है, I don't want to get into this politics. ठीक है? अनहेल्दी कंपटीशन. फिर क्या होता है ना, एक दूसरे को नीचे लाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, पीपल गेट इनटू ऑल काइंड ऑफ अनहेल्दी थिंग्स. अनहेल्दी मीन्स गालियाँ देना, एलिगेशंस लगाना, किसी को भी कुछ भी बोल देना. ओके, तो अनहेल्दी कंपटीशन. कंपटीशन शुड बी ऑलवेज देयर, बट कंपटीशन शुड बी हेल्दी. गॉट इट? द पीपल हु हैव मेड कॉन्स्टिट्यूशन, दे न्यू कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा. कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन unexperienced people have not made constitution. Constitution जिन्होंने बनाया, the people who have made constitution were very educated and very experienced. तो जब उन्होंने constitution बनाया, when the constitution makers have, they knew that in the coming times there would be problems, but still they said कि there should be free competition in elections. In whatever way the people elect their leaders, they should do it, and they did, because this system works better in the long run. आगे की राजनीति के लिए, for the further political things, these kind of things work properly. Okay, in the long run, for the further things. तो in a world, in an ideal world, जहाँ पे we say कि equality is there, the people don't discriminate each other, तो this system works better in the long run. Ideal world के लिए all political parties, okay, तो they know what is good for the people and are motivated when they get a desire to serve, कि जो लोग हमको वोट दे रहे हैं, हमको उनकी सेवा करनी है.
दे वॉन्ट टू सर्व द पीपल, सेवा करने की भावना होनी चाहिए. ओके तो लेकिन ये इट डजेंट हैपन, वेरी डिफिकल्ट. पीपल सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है. गॉट इट. तो दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, गेट द पावर एंड पोजिशंस फॉर देमसेल्व्स. सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए. वंस दे कम टू पावर दे फॉरगेट व्हाट ऑल प्रॉमिसेस दे हैव मेड. द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यहां से सब प्रॉब्लम शुरू होती है. सो दे मे विश टू सर्व द पीपल, वो चाहते हैं कि लोगों को सर्व करें, लेकिन इट इज वेरी रिस्की टू डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. करेंगे नहीं करेंगे, वी डोंट नो दैट. सो वेन दे विश टू सर्व द पीपल, जब वो सोचते हैं कि दे विल बी सर्विंग द पीपल, दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो. क्या उनको करना है ये उनको नहीं पता होता है. एंड देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वॉन्ट. लोग कुछ और चाहते हैं और वो कर कुछ और रहे हैं. व्हाट द पीपल रियली वॉन्ट. गॉट इट. दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अंडर. तो when the political parties understand the complete scenario, okay, they wish to serve the people with a feeling of serving, सेवा करने की भावना से जब पॉलिटिक्स में आएंगे, then only good things can happen. So ये सारी how do we solve it? How do we deal with this real life situation? एवरी टाइम पीपल एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, मतलब इस परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं. सो चिल्ड्रन, इलेक्शंस हो गए, लीडर्स आ गए, पावर में आ गए. लीडर्स हैव कम टू पावर. नाउ पावर में आने के बाद लीडर्स क्या कर रहे हैं? What are the leaders doing after coming to power? They are busy making money. ठीक है, यही चीज यहां दिया हुआ है. रियल लाइफ सिचुएशन, असलियत में यही हो रहा है. ओके, एंड हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड, we have to try and improve the knowledge and character of these political leaders, that when they come to power, after that they should think about, अभी बोलते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, that हमको वोट दीजिए तो हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, we will be doing serving you, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, क्या क्या. As soon as the elections are over, all the promises are also over. Got it? So we need to improve knowledge and character of political leaders. We need to see that how improvement will be brought in amongst these political leaders. And the best way is, the more realistic way is set up a system. Political leaders are rewarded for serving the people. जो सच में लोगों की सेवा कर रहे हैं. सम पॉलिटिकल लीडर्स आर गुड ऑल्सो, मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे हैं, बट देन सम पॉलिटिकल लीडर्स आर देयर हु आर मेजरली कंसर्न्ड विद देयर ओन बेनिफिट. अपना फायदा पहले देखते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या करना है. ओके, तो वी हैव टू सेट अप अ सिस्टम जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत दे शुड बी गिवन लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस फॉर सर्विंग द पीपल. एंड अगर नहीं कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो पनिशमेंट भी होनी चाहिए. नाउ वी हैव स्टार्टेड इट चिल्ड्रन. पनिशमेंट मीन्स व्हेन द पॉलिटिकल लीडर्स आर फाउंड एंगेज्ड इनटू सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस, तो उनको जेल भी हो सकती है. आई एम नॉट नेमिंग एनी लीडर, बट देन please try to understand that some leaders who are there behind the bars, जेल में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने बहुत कुछ गलत काम किया है. and when the people understand, जब लोग समझ में आता है कि तो बेवकूफ बना रहे हैं, got it, they don't leave. Okay, and the biggest power in our country, the judiciary
is there which is taking decisions in a very harsh manner. जब कोर्ट पे कार्रवाई होती है सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है. Nobody can say anything. Okay, if the matter is in court. So we need to improve the knowledge and character of the political leaders, and a very realistic manner is to set up a system जहाँ पे political leaders are rewarded. अच्छा भी तो जो करते हैं उनको भी तो हमको कुछ सोचना है, खाली बुरे लोगों को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए ना. लेकिन वही बात है, हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि लीडर ने अच्छा काम किया कि नहीं किया. अभी लीडर तो लीडर है. कैन वी रियली जज द प्राइम मिनिस्टर? ही इज डूइंग हिज वर्क. घर में बैठ के हम कुछ भी बोल रहे हैं, बट ऑन अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म कैन वी रियली जज द वर्किंग ऑफ दीज लीडर्स? नो. लेकिन कौन करेगा? द पीपल. तो इलेक्टोरल कंपटीशन की जो हम बात कर रहे हैं इन दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डन इन इलेक्टोरल कंपटीशन. रेगुलर कंपटीशन इज देयर एंड incentive should be given to the political parties and the leaders. So it is said, they know it very well that if they raise issues, ऐसे कोई अगर point उठा रहे हैं कि people want to be raised, their popularity and chances will increase for victory. अगर जीतना है तो सीखना है और लोगों के साथ में रहना है. ओके, तो लीडर्स नो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. लोगों को क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों पे जब बात होने लगती है, व्हेन द मैटर इज रेज्ड, द पॉपुलैरिटी, द चांस ऑफ विक्ट्री इंक्रीजेस इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. लेकिन अगर लोगों ने इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. दे विल लूज आफ्टर 5 years. 5 years के बाद फिर पीपल विल नॉट वोट देम ना. कहेंगे इनको वोट देके क्या फ़ायदा है, काम तो करते नहीं हैं, खाली बड़ी बड़ी बातें करने चले आते हैं. या सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज देयर एंड it wants to be in power, even then it will be forced to serve the people because they know it very well. If they don't serve the people, 5 साल के बाद लोग नमस्कार कर देंगे, वोट नहीं देंगे. ठीक है, दिस इज हाउ द मार्केट्स वर्क. ठीक है, अभी मार्केट में क्या होता है, शॉपकीपर वांट्स द प्रॉफिट, शॉपकीपर वांट्स द बेनिफिट. तो ही हैज टू गिव गुड सर्विसेज. अच्छा काम नहीं करेंगे. अभी क्या होता है, व्हेन यू गो टू बाय अ टीवी, तो आप टीवी वाले से पूछेंगे, अच्छा आप ये वाले बता रहे हैं सोनी का, तो ठीक है टीवी आप दे दीजिए, लेकिन सर्विसिंग इज़ नॉट वेरी गुड. नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, अच्छा सर्विसिंग चाहिए तब आप एलजी वाला ले लीजिए. एलजी तो आप तुरंत फ़ोन करेंगे, तुरंत वो आदमी आ जाएगा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो. दिस वे दे विल कंसर्न, दिस वे दे विल ट्राई टू विन योर सपोर्ट. एंड दिस इज वॉट अ वेरी नाइस कार्टून इज हियर. यू कैन सी द नेता इज सेइंग, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं कि आई हैव मेड प्लान्स, I have talked to the people, I have already announced it, I have promised it, and the voter is saying, मेरे पास वोट है, take the vote. And just see this neta, promises are in the bag, भी जा रहे हैं. Can you see this, how fun कि promises बना तो दिया, all this is the bag of promises, but the promises are falling down. How funny, isn't it? बट दिस इज़ द रियलिटी. अब देखो इसमें एक नाइस क्वेश्चन इज हियर, नाइस पॉइंट इज हियर. ये 2 कार्टून्स आपने देख ली, यू हैव सीन दीज 2 कार्टून्स, केयरफुली जस्ट सी इट. नाउ फ्रॉम बोथ द कार्टून्स, व्हाट आर द मैसेजेस दैट यू आर गेटिंग? ओके, ये प्रोमिसेस है नेता के, एंड लुक एट द वोटर. वोटर खाली मुंह फाड़ के देख ही रहा है. वोटर हैज बीन शोन एज एन एनिमल, इमेजिन. ठीक है, तो विच टू इज क्लोजर टू द रियलिटी इन योर ओन लोकल? आपके आसपास या वाराणसी में क्या सिचुएशन चल रहा है? आप भी कार्टून बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक कार्टून्स. हाउ इलेक्शंस आर वर्किंग, what the elections are doing to the relationship between voters and political leaders के बीच का relation कैसा होगा, that we need to understand. Got it? तो यही चीज़ थी बेटे. ये एक तो ये कार्टून आपने देखा, promises गिरते जा रहे हैं, and look at the voters condition.
एंड द वोटर ऑल्दो ही इज वेरी पुअर, ये देखो, लेकिन जब मौका मिला तो नेता को पलट के रख दिया, पलट दिया, तख्ता पलट हो जाता है ना. विच एवर इज द रूलिंग पार्टी, विच एवर इज द रूलिंग गवर्नमेंट, all their finishes once this starts is there. तो that's why all the political parties are very scared. जब आप देखो वोटिंग का टाइम होता है, कैसे घर में आके भीख मांग के वोट लेके जाते हैं. Don't they do this? Yes, that is there and that's the reality. Got it? So this is there. अभी इलेक्शंस हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, what is the system of elections? We will be doing it in the next class. Okay, children? Thank you and all the best to you.